Yes. So we'll start with the next part, that is chemical properties of ether. So in the chemical properties of ether, when ethers are react with a different reagent, so it will give the corresponding product. We'll study it properly one by one. First is reaction of ether with the dilute H2SO4, that is dilute sulfuric acid. What happened here when simple ether and mixed ether? So first example is simple ether. Simple ether, when it is react with the H2SO4, that is in presence of H2O, so it will use the alcohol, that is a similar type of an alcohol, same alcohol will get. For example, CH3O CH3 plus H2O in presence of H2SO4 or H plus, so it will use the two molecules of CH3OH, that is an alcohol. While same ether, means the mixed ether, when it is react with an H2 in presence of H2SO4 or H plus, so we get the two different alcohol, because यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप अलग अलग रहेगा ना, तो दो अलग अलग अगर अल्काइल ग्रुप है तो आपको दो अलग अलग अल्कोहल मिलेगा. मींस सिंपल ईथर से वन टाइप ऑफ एन अल्कोहल मिलेगा और मिक्स ईथर से आपको टू टाइप्स ऑफ एन अल्कोहल मिलेगा. ओके. सिमिलरली reaction with PCl5, that is phosphorus pentachloride. So here in the case of phosphorus pentachloride, ROR dash plus PCl5, when it is react, so same example we studied in an halogen derivative even in the case of alcohol. तो सेम यहाँ पे भी आ गया ROR dash plus PCl5. So PCl5 there are total 5 chlorine atom. So यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे एक Cl कंबाइन करोगे तो आपको एक मिलेगा RCl, दूसरा R dash Cl. Remaining was there is an oxygen and PCl3 is left. So we get the byproduct as a POCl3, that is phosphoryl chloride. So we got two types of an alkyl chloride. Same thing when the next reaction is that reactions of ether with an HX. HX is nothing but either HI, HBr and HCl. So ether when it is react with an HX, so we'll get the corresponding compound, that is alkyl halide RX as well as ROH. So HX कैसा ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा H और यहाँ पे X ऐड होगा, like that. तो आपको एक RX मिल जाएगा और दूसरा आपको क्या मिलेगा, ROH मिल जाएगा. Finally, same ether when it is react, here we have taken the aromatic ether, that is nothing but the anisole. तो अगर आपने anisole लिया हुआ है, C6H5OCH3 है, देखो ये, हाँ, C6H5OCH3, this is an anisole. When it is react with an HI at 398 Kelvin, so final compound will be your phenol plus मिथाइल आयोडाइड. सो इस तरह से एडिशन होगी फिनॉल और आपको ये मिल जाएगा मिथाइल आयोडाइड. CH3I विल बी अ मिथाइल आयोडाइड and C6H5OH is your phenol, right? So this is your chemical properties of ether. बोलो ना बेटा, हेलो. R dash OH, वेरी गुड. R dash OR मतलब डिफरेंट, बराबर ना, मत ये मैं इसको ही कन्वर्ट करके बताता हूँ, ठीक है. सुनिए, अगर आपने यहाँ पे R डैश और O लिया हुआ है, राइट, और HX के साथ रिएक्ट किया तो क्या होगा, मींस यहाँ पे दो अलग अलग मिलेंगे ना कंपाउंड. फिर फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेके आप ROH मिलेगा, बट द हायर अल्काइल ग्रुप जो होगा ना, दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल. ध्यान देना, गुड क्वेश्चन है आपका. जो हायर अल्काइल ग्रुप होगा दैट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, और लोअर अल्काइल ग्रुप जो होता है वो दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अल्काइल हैलाइड, राइट. तो इसमें मैं एग्जांपल लेके बताऊं क्या, एक मिनट रुकिए. आपका गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. मैं विल टेक एन एग्जांपल. CH3O C2H5, ठीक है, आपका कहना ये है, बराबर ना. सो वी आर टेकन टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, मतलब ये मिक्स इतर लिया हुआ है CH3O C2H5, और इसको हम लोग रिएक्ट करते हैं HI के साथ में. HX में HI ले लीजिए या फिर, ठीक है. तो बाय रूल दैट लार्जर अल्काइल ग्रुप जो होता है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स एंड द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप गेट कन्वर्टेड इनटू अल्काइल आयोडाइड. तो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है CH3, वो कन्वर्ट होगा अल्काइल आयोडाइड में, और हायर अल्काइल ग्रुप है C2H5 दैट गेट कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल पार्ट, एक्सेप्ट टर्शरी. अगर यहाँ पे अगर कोई भी टर्शरी ग्रुप है, टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है, तो दैट टर्शरी इज ऑलवेज
get converted into tertiary alkyl iodide because tertiary is more stable. tertiary कार्बोकैटायन जो होता है that is more stable, तो वो tertiary कार्बोकैटायन कन्वर्ट होगा आपका tertiary alkyl iodide में. ठीक है, समझ में आ गया. सो टर्शरी का कोई भी अगर है, मतलब यहाँ पे कितने भी कार्बन एटम रहने दीजिए, 10 कार्बन एटम रहने दीजिए, और यहाँ पे अगर टर्शरी है तो टर्शरी इज ऑलवेज गेट कन्वर्टेड इनटू टर्शरी अल्काइल आयोडाइड. ठीक है, यहाँ पे कम भी है, एक ही कार्बन एटम है, दो ही कार्बन एटम है, फिर भी अगर टर्शरी है तो टर्शरी ऑलवेज गेट कन्वर्टेड इनटू टर्शरी अल्काइल आयोडाइड. अदरवाइज the larger alkyl group get converted into alcohol and the smaller alkyl group get converted into alkyl iodide. और अगर दोनों सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो वो सिमिलर टाइप का मिलेगा ना एक. हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना मैंने, अगर दोनों सेम है तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी को थोड़ा सा ओवरराइट कर रहा हूँ, चलेगा ना. अगर ये दोनों देखो C2H5 है, दोनों C2H5 OC2H5, तो एक क्या मिलेगा आपको अल्कोहल और एक कन्वर्ट होगा आयोडाइड में. दोनों सेम है ना, तो एक कन्वर्ट हो गया इथाइल आयोडाइड में और एक कन्वर्ट हो गया इथाइल अल्कोहल में. राइट, डिफरेंट है, दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है इथर का, तो जो लार्जर अल्काइल ग्रुप लेगा वो किस में कन्वर्ट होगा, आपका अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और स्मॉलर अल्काइल ग्रुप कन्वर्ट होगा आपका अल्काइल आयोडाइड में. एक्सेप्ट टर्शरी अल्काइल, टर्शरी अल्काइल ग्रुप मतलब टर्शरी ब्यूटाइल है तो दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अल्काइल आयोडाइड itself. इजी, राइट. या वेरी गुड. तो शैल वी मूव टू द नेक्स्ट, लास्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं, फिर हमारा क्वेश्चन डाउट सेशन अगर कुछ रहेगा वो कंप्लीट भी कर लेंगे, है ना. तो फटाफट से लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक है. ये देखो, ये सबको दिख रहा है प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं है. इसको मैंने स्प्लिट नहीं किया है दो पार्ट में, ये एक ही पार्ट में क्लियरली दिख रहा है. अगर मोबाइल फोन है तो थोड़ा सा वर्टिकल पकड़ लीजिए, लैपटॉप है तो थोड़ा सा आप इसको रिवर्स कर लो प्लीज, मतलब स्क्रीन को. हाँ जी, नेक्स्ट है इसका रिएक्शन. अभी वी आर स्टडिंग एक्चुअली द रिएक्शंस ऑफ ईथर ना. सो हियर इन दैट केस वी स्टडी द रिएक्शंस ऑफ एन एलिफैटिक ईथर. ओके, और उसमें एक सिर्फ एनिसोल का किया था हमने. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी विद द एरोमेटिक ईथर, रिएक्शंस ऑफ एन एरोमेटिक ईथर, जो जनरली ईथर आल्सो अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक ईथर, ये क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग, राइट. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया एनिजोल, तो मैंने आपको बताया था ना एनिजोल इंपॉर्टेंट है, इसका रिएक्शन एग्जाम्पल्स है. जैसे फिनॉल का हुआ था वैसे एनिजोल का भी है. ओके, जैसे क्लोरोबेंजीन का भी किया था सेम फिनॉल का है, अभी ये एक एनिजोल का भी यहाँ पे आ गया. तो इन पर्टिकुलर केस जनरली अगर इफ यू ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिजोल, तो हमें व्हाट वी गेट दैट एट द ऑर्थो एंड para position, again the negative charge will delocalize at the ortho and the para position, that will be a highly reactive position. Okay, so generally pulsar effect of that alkoxy group result in the increase in electron density at the para and to ortho position. So obviously we'll get the ortho and para directed compound. Here we also get the ortho and para directed compound. So anisole, when it is react with the bromine Br2 in presence of CH3COH as an acetic acid, this is called as a same halogenation. जैसे फिनॉल में पढ़ा था halogenation, bromination, वैसे इसमें भी है. So when bromine is react with an anisole, it undergoes halogenation and again it will use the para-bromo-anisole and ortho-bromo-anisole. Same repeat हो गया. यहाँ पे देखिए, यहाँ से H होगा, ये para का, ये ortho का H हो गया, और ये हो गया para का H. एक मिनट, ठीक है. So always para will be the major product. So we are getting 90% मतलब major product, that is para-bromoanisole, and 10% that is minor product, that is ortho-bromoanisole. Again I am saying that major और minor लिखो, that is also very important, right. तो ये हो गया पहले ब्रोमिनेशन. तो H, हाँ जी बेटा बोले ना. ऑर्थो ब्रोमो एनिजोल एंड पैरा ब्रोमो एनिजोल हमने हैलोजन डेरिवेटिव में भी पढ़ा था ना बेटा. अगर आप देखोगे तो OCH3 और Br में फर्स्ट पोजीशन अगर आप चेक करोगे, देयर इज अ लॉट्स ऑफ चार्ज, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, और आपका जो
ये आ गया ना ध्यान में। और डिफरेंस भी बहुत है ना। अगर देखो कैसा होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, इट्स अ वेरी टिपिकल वर्ड। तो मैं एक सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ कि अगर सपोज आप अगर यहाँ पे चेक करोगे, रेजोनेंस में जाएगा तभी की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ तो ये प्लस होगा, ये यहाँ पे माइनस होगा, तो देयर इज अ डिफरेंस इन द चार्ज सेपरेशन। अगर इसका रेजोनेंस करोगे आप जैसे एनिजोल का, तो उस केस में क्या रहेगा, उस केस में यहाँ पे देखो ये ये आप सॉरी माइनस नहीं, वो प्लस रहेगा आपका और ये माइनस है। तो चार्ज सेपरेशन देखो जितना दूर रहेगा उतना अटैचमेंट पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी ना। ओके, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर केस के अंदर ऑर्थो में ज्यादा पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो और वो स्टेरिक हिंड्रेंस का भी फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको वो सब ये सब मैकेनिज्म, आपके बोर्ड एग्जाम में कोई मैकेनिज्म पूछने वाला नहीं है, आपको प्रोडक्ट ही फाइनल लिखना है। ठीक है, मैकेनिज्म जो है वो लिमिटेड मैकेनिज्म है, जो टेक्स्ट बुक पे दिया है वही आएगा, जैसे SN1 SN2 और डिहाइड्रेशन ऑफ एन अल्कोहल जो नहीं है आपको सिलेबस में, अभी 25% में रिड्यूस हो गया है, धीरे धीरे पता चलेगा आपको। ओके, तो ये हो गया। उसी तरह से अभी सेम प्रोसीजर करना है, ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, राइट। देखो फ्रीडल क्राफ्ट में दो रिएक्शंस होते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ओके, तो यहाँ पे व्हाट इज अल्काइलेशन, देखो व्हेन वी आर रिएक्टिंग एनिसोल विद द CH3Cl, CH3Cl इज मिथाइल क्लोराइड, व्हेन इट इज रिएक्ट विद एन अनहाइड्रस AlCl3 एज अ कैटलिस्ट, राइट। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो ये H जो है फिर से रिप्लेस होगा CH3 से, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोफिलिक क्यों हो गया, देखो ये अनहाइड्रस AlCl3 होता है ना, ये क्लोरीन के ये CH3Cl के कंबाइन होके ना, ये Al जनरली क्या बनेगा, इसमें हमें मिलेगा AlCl4 माइनस, और बचा क्या आपके पास CH3 प्लस बच गया, राइट। ये हो गया CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। तो अभी ये H जो निकलेगा वो CH3 से हटेगा, राइट, बराबर। तो ये CH3 है मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल है ना, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Okay, the substitution will be taken place by the electrophile. Now here in case of methyl chloride, methyl is the electrophile CH3। तो ये दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि प्रोडक्ट क्या रखना है, इजी। तो ये CH3 ग्रुप से रिप्लेस हो गया H और H। तो फिर से देखो यहाँ पे 4 methoxytoluene, that is nothing but the para, right, we can say that is para methoxytoluene हो गया, और ये बन गया आपका 2 methoxytoluene, राइट। तो ये मेजर और माइनर क्यों हो गया, आपको पता चल गया अभी मेजर और माइनर। जो पर्टिकुलर केस में दैट इज 4 मिथॉक्सी जो रहेगा दैट इज पैरा विल बी द मेजर, और ऑर्थो जो रहेगा वो माइनर रहेगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। व्हाई आई एम प्रेसिंग द वर्ड अल्काइलेशन, बिकॉज द सब्स्टिट्यूशन विल बी टेकन प्लेस बाय अल्काइल ग्रुप, CH3 ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन हुआ है बेटा, राइट। उसी तरह से ये जो है पर्टिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है। देखो एक मिनट में इसको फिर से रिवर्स जाता हूँ प्लीज, क्योंकि हाँ जी, ये देखो ये एनिजोल को हम लोग रिएक्ट करने वाले, फिर से यहाँ पे आपका H जो रिप्लेस होगा ऑर्थो और पैरा पोजिशन का H रिप्लेस होगा, राइट, इजी। हाँ जी, CH3COCl that is called acetyl chloride in presence of anhydrous AlCl3, so it is called as a Friedel-Crafts acetylation. Acetylation means the replacement of hydrogen atom by acetyl group। तो अभी acetyl group क्या होता है ये हमने पहले भी पढ़ा है, तो मैं वापस से लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखो ये CH3C डबल बॉन्ड OCl है, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर ग्रुप होता है ना, दिस इज कॉल्ड एसिटाइल ग्रुप, CH3C डबल बॉन्ड O। तो अभी देखो यहाँ पे H निकल जाएगा, अभी बाय प्रोडक्ट भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ से H निकल जाएगा तो हमें माइनस HCl मिलेगा, राइट, राइट। यहाँ पे भी बाय प्रोडक्ट ऊपर में भी HCl होता है। नाउ CH3C डबल बॉन्ड O ये होता है एसिटाइल ग्रुप। सो द हाइड्रोजन एटम जो रहेंगे ना वो रिप्लेस हो गया एसिटाइल ग्रुप से, मतलब COCH3 ग्रुप से रिप्लेस हो जाएंगे। सो देखो, सो हियर इन द केस ऑफ नेक्स्ट रिएक्शन at fourth position there is a COCH3 group which is nothing but the acetyl group, okay, and in the second जो आपका प्रोडक्ट मिला है उसमें भी सेकेंड पोजीशन पे मतलब ऑर्थो पे आपके पास क्या आ गया है, एसिटाइल ग्रुप आया है। सो अगेन that 4-methoxyacetophenone which is on the para position that will be the major product और ये minor product है, सिंपल है। Friedel-Crafts acetylation is nothing but the replacement of hydrogen atom, or we can say substitution of hydrogen atom of aromatic ring of anisole by acetyl group, that is CH3C double bond O group,
Okay, the reaction when it is take place in presence of anhydrous AlCl3, so we get the 4-methoxyacetophenone and 2-methoxyacetophenone. Out of that, 4-methoxyacetophenone is the major product. Easy. लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग अभी. तो ये चैप्टर का आपका लास्ट रिएक्शन है, दैट इज नथिंग बट दी नाइट्रेशन. फिर से आ गया देखो नाइट्रेशन. नाइट्रेशन ऑलवेज डन इन प्रेजेंस ऑफ nitrating mixture. Now what is nitrating mixture? Mixture of concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 is called nitrating mixture. And the nitration में क्या होगा? The replacement of hydrogen atom of aromatic ring by nitro group. तो फिर से अगर मुझे नाइट्रेशन करना है तो I can write HNO3 like that. मैं HNO3 को आप लिख सकते हो OH NO2. तो यहाँ पे क्या होगा? फिर से H रिप्लेस होगा NO2 ग्रुप से. तो देखो यहाँ पे 4 nitroanisole and 2 nitroanisole will be the compound, and again the 4 nitroanisole, that is a major compound, and 2 nitroanisole is the minor compound. Okay, बाय प्रोडक्ट क्या आएगा इसके अंदर? एज OH इज लेफ्ट तो H will combine with OH and we get the H2O. बट टेक्स्ट बुक पे नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लिखोगे तो वेल एंड गुड है. लाइक दैट. सो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देयर आर 4 रिएक्शंस है. ब्रोमिनेशन हो गया, हैलोजिनेशन हो गया, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन हो गया, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन और नाइट्रेशन हो गया. ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं लास्ट पार्ट जो आपका खुद का पार्ट करना है आपको. देयर इज द यूजेस ऑफ अल्कोहल वगैरह दिया हुआ है तो प्लीज ये आपका सेल्फ स्टडी है, सिंपल पार्ट है. यूजेस ऑफ एन अल्कोहल आप पढ़ लो. इट इज एक्ट एज अ सोलवेंट, है ना, टू रिमूव दी फॉर द पेंट एंड वार्निशर रिमूवर. मीन्स जो पेंट और वार्निशेस होते हैं कि उसके लिए सोलवेंट का काम कर लेते हैं. तो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज जस्ट रीड दैट पर्टिकुलर टू अल्कोहल ईथर्स एंड फिनॉल्स का यूजेस. ठीक है, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट योर अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर चैप्टर. पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. लिटिल